now we have come with another session of statistics, and in a previous lecture we have discussed about measure of standard tendency. So today we'll talk about the measure of dispersion. So dispersion is a variance of the items in any given data set. So let's try to understand the concept. Whenever you collect data from any population and you calculate the average of that, average is something that represents the entire data set. But you will see that most of the data will cluster around one value, that is measure of standard tendency that we have discussed in previous session. Now some of the value will be in a plus and some of the value will remain in a minus from the average. This property of data where the values or individual observation revolve around the center value is known as a dispersion. So dispersion basically provides the indication of how score in a samples are vary around the average. So simply what I'm trying to say is, if let's say, if I'm giving an example, if the mean of something is equal to 20 and mean age, and suppose someone having an age of 21 or someone may have an age of 19. So this person is having an age in a plus and this person is age in a minus. So this property of data where individual observation get fluctuate from the average, this fluctuation from the average is known as dispersion. Now before we proceed further, we can see some of the important characteristics of measures of dispersion. So first understand what do you mean by the term measure of dispersion. So measure of dispersion means the various measures or various statistics used to find out the dispersion. So like you might have heard about the range, mean deviation, quartile deviation, standard deviation is a very common one. So these are some of the measures of dispersion. And आपने इसमें से सुना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन जो बहुत कॉमन है, वर्सेटाइल है एंड काफी जगह यूज होता है. So we'll just talk about all that. But before we proceed to the measures, let's talk about what should be the quality in an ideal measures of standard tendency. Dispersion. So first point is it must be easy to calculate. That is the first requirement. If it is very complicated to calculate, it will not be a choice for many. Then should be rigidly defined. So when I say rigidly defined means it should not change every time. Like I'll give an example. If you calculate a dispersion measure like range, in a range what happens? It fluctuates very often. If one value get changed, dispersion also will change. So it should not happen, okay, if it is an ideal dispersion. Then it should not affected much by the fluctuation of the observation. So as I already have told you that, so if there are extreme values in a data set or if the data set having different values, then it should not affect the average dispersion. Okay, then last one, based on all the observations. Okay, sometime you just take some of the measures of dispersion where only upper and lower limit are being used, like extreme values we take, like in case of range we'll see that higher value plus lower value, so the middle values are never get involved into the equation. So that will not give us the correct way of dispersion. So this is about the characteristics of a dispersion. Now what are the different types of measures we can have? So broadly we can divide them into two categories. One is the absolute measures or single measures, then we have a relative measures. So relative measures means comparative measures. So when it comes to the relative measures or comparative measures, we have a choice of coefficient of variance or mean deviation or standard deviation, the coefficient of all that. And comparative means when you want to compare the two groups, like let's take an example. I want to just see which group is more homogeneous. Let's say BSc first year or BSc second year. So you can use the coefficient of variance for mean deviation and standard deviation. Similarly, for the absolute measures, you can use the range. Then we have quartile deviation. Then we have mean deviation. Then we have a standard deviation. These four measures are there. So we'll discuss all these one by one. So most important measure of dispersion. और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होता है, 15 मार्क्स का होता है, ठीक है. सो मीन वहाँ से मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में और स्टैंडर्ड डिविएशन हियर फॉर द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस. The standard deviation is a statistic that measures the average amount of deviation of values from the mean. जैसे
किसी का एच भी है, आई एम सेइंग दैट लाइक 9, 11, 10, 12 और 8। अब इसको आप इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 30, 40 हो गया ना, 30, 40, 50 हो गया मेरे ख्याल से ना, 20, 30, 40, 50 हो गया, 50 हो गया सम डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो आपका जो एवरेज हो गया वो कितना आ गया 10। तो आपका जो मीन है इसका कितना है, वो आ गया इक्वल टू 10। अब आप देखेंगे कि ये 10 है, एवरेज सबका 10 है, एवरेज हमारा 10 है। तो विल सी सम ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन 10, सम ऑफ द वैल्यूज आर मोर देन 10। अब जब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज डिविएशन, अब यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे ओनली 1 माइनस है। सो व्हेन वी गेट दिस एवरेज अमाउंट ऑफ डिविएशन of this value, then we call it a standard deviation. Okay, that's a very important point here. Now next is the equation for standard deviation. Equation for standard deviation वो कैसे करेंगे हम लोग, that is by summing all the individual scores divided with the number of sample will give us the average deviation. मतलब अगर आप ये कर लेंगे ना, x माइनस एक्स बार का समेशन कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल कर देंगे। जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ कि इसका एवरेज डिविएशन कितना है, ठीक है, तो वो हमेशा आपको वैल्यू दे देगा। लेकिन मैं इसी पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। जैसे इसका डिफरेंस कितना है, इसका हो गया -1, इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, इसका हो गया 2 और इसका हो गया -2। अब इनको टोटल कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ये बोल रहा है वो इंडिविजुअल स्कोर्स एवरेज कर लो, तो ये हो गया -1, तो माइनस माइनस को अलग जोड़ लेंगे, -1 एक ये हो गया और एक माइनस का ये हो गया, तो माइनस वाली वैल्यू 3 हो गई हमारे पास। प्लस वाली वैल्यूज़ कितनी है, प्लस वाली वैल्यूज़ में हमारे पास 2 1 है, 2 + 1 वो भी 3 हो गई, तो प्लस वाली वैल्यू भी 3 होगी, तो ये बन गया इक्वल टू 0। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। दैट इज़ वाई व्हाट वी डू, हमें इसको क्या करना है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार को टोटल करने के बजाय इसको स्क्वायर कर लेना है। ओके, सो विल सी दैट, सो देन विल गेट दिस वैल्यू। तो स्क्वायर कर लेंगे पहले, एज यू कैन सी हियर, एंड फाइनली उसको फिर हम लोग अंडर रूट कर लेंगे। सो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो फॉर द रो डेटा योर फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड n-1 फॉर रो डेटा एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई f जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाई समेशन f। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं टू कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डिविएशन। दिस इज फॉर रो डेटा एंड दिस इज फॉर एनी फ्रीक्वेंसी टेबल, चाहे वो डिस्क्रीट टेबल हो या आपकी कॉन्टिन्यूस टेबल हो। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, दैट इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद में x माइनस एक्स बार करना है। ओके, वंस यू कैलकुलेट द मीन तो हर एक मीन को इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हमने उसको स्क्वायर कर देना है, मीन माइनस एक्स बार स्क्वायर करके, फिर स्क्वायर करने के बाद में उसका इसको स्क्वायर कर लेना है हमने इस तरीके से, और फिर आपने ये फॉर्मूला पे इसको फिट करना है, यू विल गेट ए वैल्यू। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। Following data gives the result of observation of 5 patients or a sick test। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन आ गया, तो ये ऑब्जर्वेशन आ गया, तो आपके पास 2 5 3 4 1 ये उनका ऑब्जर्वेशन है। What we need to do first we need to calculate the mean, that is क्या होगा मीन का फॉर्मूला यहाँ पे, x बार इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड n। तो इनको सम करेंगे, सो इनको सम करने के बाद में आपको जो वैल्यू आ रही है वो मेरे ख्याल से 15 आ रही है। सो 15 डिवाइडेड 3 करेंगे, 15 डिवाइडेड 3 करेंगे तो आपके पास में कितना आ रहा है, सॉरी दैट्स अ मीन ना, 2 5 7 15 15 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है ना, 1 2 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी मीन आ जाएगी 3, दैट्स वाई द मीन इज 3। ओके, सो आपका मीन आ गया 3। अब आपने क्या करना है, आपने x माइनस एक्स बार करना है। तो x माइनस एक्स बार के लिए क्या है, 2 माइनस 3 5 माइनस 3 3 माइनस 3 4 माइनस 3 ये कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करने के बाद में दिस इज व्हाट यू गॉट। ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या है, एस डी इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड n-1
ऑफ अंडर रूट। तो आपकी ऊपर वाली जो ये वाली वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज अ 10, यू गॉट अ 10 डिवाइडेड n-1 कितना, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने ऑब्जर्वेशन आपके 5, सो इट इज अ 5 - 1 अंडर रूट। फिर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली you will get your standard deviation, that is a 1.58. So what is simply you can calculate, and you can see that how we learn to calculate standard deviation from the raw data. अब हम बात कर लेते हैं calculating the standard deviation for table, okay, चाहे वो discrete हो या continuous हो. I have taken the example for continuous frequency table. Continuous frequency table मतलब the table that comes with the class interval, okay, as you can see. So this is the example says about the marks obtained by the students in nursing research. So calculate the standard deviation. तो marks यहाँ पे दिए हुए और number of students आपको यहाँ पे बता रहे हैं. तो first arrange all the data in that way and that frequency. ये दो चीज़ तो पहले से आपको मिल गई हैं, already it is given. So as you know that how to calculate the first step will be the same, we should calculate the mean for that. तो how we calculate the mean, by calculating the midpoint. So आपका ये midpoint calculation हो गया. How do we calculate median, sorry midpoint, हर एक वैल्यू का मिडिल पॉइंट लेना है. फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड 2, मतलब 60 प्लस 62 डिवाइडेड 2 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 61. सेम वे 62 प्लस 64 डिवाइडेड 2 करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ 63. ऐसे ऐसे आप इसको सारा कैलकुलेशन करते जाएंगे. फिर आपका एक्सेप्ट कैलकुलेट करना है, लाइक सेम प्रीवियस एग्जांपल दिया तो आपको 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे x क्या होगा आपका मिड पॉइंट है ना, जो हमने मीन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था. तो सेम वे यू कैलकुलेट एंड यू विल गेट योर एक्सएफ. अब आपकी एक्सएफ वैल्यू कितनी होगी 308, तो इसको सम करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके. डिवाइड, तो फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू समेशन XF डिवाइडेड बाई समेशन F. तो आपके पास में समेशन XF तो ये आ गया और समेशन F क्या है, ये वाला पॉइंट. तो जब आप इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको जो मीन मिलेगी वो आ गई आपकी मीन, दैट इज 67. तो योर मीन इज 67, मतलब एवरेज जो उनका मार्क्स है वो 67 है. बट एज यू कैन सी दैट देयर इज डिविएशन इन दैट. सो नेक्स्ट विल अप्लाई दिस x माइनस एक्स बार सेम वे में. तो अब आपने x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है. सो x क्या है इसके अंदर 61 को माइनस किससे करना है 67 से, माइनस 67 माइनस 67 माइनस 67 माइनस 67. 67 क्या है यहाँ पे 67 इसका मीन है, तो मीन से माइनस किया तो आपको ये वाली वैल्यूज सारी यहाँ पे ये वैल्यूज मिल गई हैं. ठीक है जी. अब फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर इनका सम करेंगे सबका तो वो जीरो आएगा, माइनस और माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा. इसलिए हमने क्या किया, आगे इसको स्क्वायर कर लिया. तो आपको स्क्वायर करने के बाद 6 × 6 36, 4 × 4 16, ऐसे ऐसे आपको करके ये सारा समेशन x माइनस एक्स बाय स्क्वायर आ गया. नाउ नेक्स्ट इज यू शुड, अब यहाँ पे ये एक एडिशनल स्टेप है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ में भी इसको मल्टीप्लाई करना है. सो x माइनस एक्स बार वैल्यू यहाँ पे फॉर वन पर्टिकुलर क्लास इज 36 टू बी मल्टीप्लाई विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. वो क्या है आपकी 2. तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, यू विल गेट दिस वैल्यू. तो आपको सारी वैल्यूज आती रहेंगी. लाइक 128 कैसे आया, हमने इसको 16 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ में, देन यू गॉट दिस वैल्यू. 4 मल्टीप्लाई विद 4 तो 40 आ गया. सो फाइनली आपका समेशन ये वाला x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ, जो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला है SD का, दोबारा लिख रहा हूं मैं, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ. तो हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 480 डिवाइडेड बाई कितना है समेशन एफ कितना हमारे पास 46 का अंडर रूट करना है. और फाइनली जब आप करेंगे तो यू विल गेट ए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 3.22. So the average deviation, average standard deviation for this particular data is 3.22. So that's all about the standard deviation. Not very important, but कुछ प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहा हूँ. एक मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कोई भी डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन मैक्सिमम मिनिमम लेवल पे 0 जा सकता है. ठीक है, कभी भी स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा. ओके, तो मैक्सिमम इट कुड बी 0, सॉरी मिनिमम इट कुड बी 0, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है,
इसकी मेरिट की बात करें तो बहुत सारी, एक मेरिट में लेता हूं कि एक तो ये सभी डेटा को इन्वॉल्व करता है, लाइक ऑल दी ऑब्जर्वेशन गेट इन्वॉल्व इन दी कैलकुलेशन। जैसे हमने रेंज में देखा था कि लोअर और अपर लिमिट को ही वो कंसिडर कर रहे हैं, मिडिल ऑब्जर्वेशंस वर नॉट इंक्लूडेड इन द एनालिसिस, हियर एवरी ऑब्जर्वेशन विल बी इंक्लूडेड, इसीलिए बहुत स्टेबल होता है ये। इसकी डिमेरिट की अगर बात करें तो ये मीन बेस्ड है, तो ऑफकोर्स इसमें भी जो एक्सट्रीम डेटा है उनका अफेक्ट उस पर रहता है। मतलब अगर बहुत हेट्रोजीनियस डेटा है, डेटा कुछ इस तरह का है कि जहाँ पे बहुत सारे आउटलायर्स हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि नॉर्मल रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो फिर उस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन कई बार फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज आपको दे सकता है। सो दैट इज अबाउट दिस। नो, इससे मिलता जुलता सा एक और हमारे पास कैलकुलेशन है जो आपके एग्जाम में आता है कई बार, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। व्हाट इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? बहुत ही सिंपल है, CV, coefficient of variance is a relative measure of dispersion where SD is expressed as a percentage. Relative का मतलब होता है comparative, relative का मतलब होता है comparative। तो comparative में जैसे मान लो मुझे ये देखना है कि किस क्लास में वेरिएंस ज़्यादा है, तो उस केस में मैं फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। कई बार एग्जामिनर बड़े स्मार्ट होते हैं, व्हाट दे डू, दे विल गिव यू वन डेटा एंड आस्क यू टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको मीन का पता होगा और जब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना आएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, या फिर ऐसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को जब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड मीन मल्टीप्लाई बाई 100। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट हैज मीन, उनका मीन कितना है, 100 स्टूडेंट का 62 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 7 है, तो CV कैलकुलेट करना है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट CV? 7 दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड 62 मल्टीप्लाई 100, तो आपका CV आ गया 11.2%। सो व्हेन यू एक्सप्रेस योर स्टैंडर्ड डिविएशन इन अ परसेंटेज फॉर्म देन इट बिकम ए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब इसमें मान लो दूसरा ग्रुप भी होगा, किसी और ग्रुप का भी अगर हम बात करें, लेट से उनका जो मीन उनका मीन लेट से 67 है और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 8 है, तो क्या करेंगे हम लोग 8 डिवाइड 67 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो 11.2 आया है उससे कंपेयर कर लेंगे, जिसका भी वेरिएंस ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे इनमें ज़्यादा डिस्पर्शन है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की। तो आज का ज्ञान है 1 मिनट गोल्स के ऊपर। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप मल्टीपल गोल्स पे चले जाते हैं और आपके गोल बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं 1 मिनट गोल। 1 मिनट गोल में क्या होता है कि जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद में उसमें जो टॉप के 4 गोल्स हैं, ओके, उनको आप लिखो और उन पे फोकस करो। एक बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट आई थी जिसे बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, जैसे 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि आपके 80% सक्सेस आपकी 20% एफर्ट से या कोई भी चीज़ में ये अप्लाई कर सकते हो। तो हमेशा आपके गोल्स जो है बहुत ही छोटे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, और कुछ ऐसे हो कि जिसको आप एक 1 पैराग्राफ में या एक 2 लाइन्स में आप लिख पाएँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपके गोल्स आप कैसे जल्दी से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।